Come to the next, number 8. क्या दिया देखो यहाँ पर, देखिए नॉर्मली आपको जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में ना जो क्वेश्चन आएंगे, जो अब तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या फिर एक रिवर्स कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन होता है। रिवर्स कॉस्टिंग मतलब जहां पर बैलेंसिंग फिगर इज टू बी टेकन एज एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट। वो जब प्रॉब्लम करेगी तब समझेगा। 2 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। सो प्लीज कम टू नंबर 8. A company process raw material in its department 1 to produce 3 products A, B and X at the same split off stage. During a period 1,80,000 kg of raw material were processed in department 1 at a total cost of rupees 12,88,000. And the resultant output of A, B and X were 18,000, 10,000 and 54,000 kg respectively. A and B were further processed in department 2 at a cost of rupees 1,80,000 and 1,50,000 respectively. X was further processed in department 3 at a cost of rupees 1,08,000. मतलब तीनों प्रोडक्ट्स हमने फर्दर प्रोसेस किए। There is no best in further processing. The details of sales effected during the period were as under. Quantity sold A 17,000, B 5,000 and X 44,000. Sales value 12,24,000, 2,50,000 and 7,92,000. There were no opening stock. If these products were sold at split off stage, the selling price of A, B and X would have been rupees 50, 40 and rupees 10 per kg respectively. इसका मतलब देखो, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ना आपको A का, A की क्वांटिटी सोल्ड 17,000, सेल्स वैल्यू 12,24,000। ये 12,24,000 क्या है? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि अगर ये आप विदाउट प्रोसेस करके बेचते तो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स वैल्यू आपको अलग से दी है, विच इज रुपीज 50, 40 एंड 10 रिक्वायर्ड. Prepare a statement showing the apportionment of joint cost to A, B and X. Present a statement showing the cost per kg of each product indicating joint cost, further processing cost and total cost respectively. Prepare a statement showing the product price and total profit for the period. State with supporting calculation as to whether any or all the products should be further processed or not. Again उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, but this time what do you require? Prepare a statement showing the apportionment of joint cost to A, B, X. Present a statement showing the cost per kg of each product indicating joint cost, further processing cost and total cost respectively. ठीक है, yeah. Now in this case, but which method to be applied for joint cost allocation is not given. So in that case, yeah, sales value at split off point, safer side. उसमें क्या होता है, फिर प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आपको इमीडिएटली मिल जाता है। कितने आपकी जॉइंट कॉस्ट? A company process raw material in its department 1 to produce 3 product A, B and X at the same split off stage. During a period 1,80,000 kg of raw material were processed in department 1 at a total cost of 12,88,000. So total cost उसमें दे दिया आपको, material cost, labor cost, your overheads, everything is 12,88,000. This itself is your joint cost. क्योंकि आगे जो भी दिया है वो सबकी आपको, सबकी अपनी अपनी further processing cost आपको दी है, जिसमें कि A and B were further processed in department 2 at a cost of 1,80,000 and 1,50,000 and X was processed in department 3 at a cost of 1,08,000. ये आपकी further processing cost है. Yes, write down. तो जॉइंट कॉस्ट का स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है, जॉइंट कॉस्ट आपको दी है 12,88,000. सिर्फ एक लिख दो नोट, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन का बेस आपको लिखना पड़ेगा. नोट, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन
it is assumed that joint cost is allocated on the basis of sales value at split off point. On the basis of sales value at split off point. ये बनाइए। इस बार आपको present statement showing the cost per kg of each product indicating joint cost and further cost in processing cost and total cost respectively. So हर एक प्रोडक्ट आपको जॉइंट कॉस्ट बतानी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, शोइंग द कॉस्ट पर केजी, यूनिट वाइज भी निकालना है और टोटल की भी निकालनी है आपको, ठीक है। सो बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इतना स्टेटमेंट कीजिए अभी। Statement of joint cost and further processing cost. अब इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि आपकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है दैट इज अ डिफरेंट एंड व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड इज अ डिफरेंट। अब देखिए प्रॉब्लम में सबसे खतरनाक इस बार थर्ड लाइन में दी आपको द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ ए बी एंड एक्स वेयर बी वेयर 18,000 kg 10,000 kg एंड 54,000 kg रिस्पेक्टिवली। ये आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी, लेकिन नीचे के स्टेटमेंट जो सेल्स क्वांटिटी वो कितनी है 17,000, 5,000 एंड 44,000 है ना। लेकिन आपको क्या करना होगा, जॉइंट कॉस्ट तो आपको जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उसके लिए लेनी पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर द क्वांटिटी सोल्ड। तो पहले तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन आपको करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जो हमने प्रोड्यूस किए वो अगर हमने सेल किए तो उसकी सेल्स वैल्यू क्या आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए अगर वो हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल किया तो उसकी सेल्स वैल्यू क्या आएगी, ऑन दैट बेसिस यू विल हैव टू एलोकेट योर जॉइंट कॉस्ट। गॉट इट? लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करते वक्त आपको कॉस्ट प्रोपोर्शनली लेनी पड़ेगी जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं। Are you getting my point here? So first find out what is the cost. Let's say for A के लिए आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी 18,000 यूनिट्स के लिए। लेकिन जब उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करेंगे तो यू हैव टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ ओनली दैट क्वांटिटी व्हिच इज सोल्ड फॉर ए व्हिच इज 17,000। आर यू गेटिंग हियर? सो इसलिए मैंने क्या किया, हियर आई प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ओनली। सो राइट डाउन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 18,000, 10,000, 54,000. Selling price at split off point at
स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट या स्टेटमेंट के बाद दिया है, इफ दिस प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी एंड एक्स वुड हैव बीन 50 40 10 50 40 10 therefore sales 18,000 into 50 9 lakh 10,000 into 40 4 lakh and 54 into 10 is 5 lakh 40,000. So total becomes 18 lakh 40,000. Joint cost. Joint cost allocation. What is our joint cost? It's 12 lakh 88,000. 12 lakh 88,000. So this 12 lakh 88,000 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप सेल्स रेशियो में 6 lakh 30,000 2 lakh 80,000 and 3 lakh 78,000 3 lakh 78,000 is it? Then further processing cost. Further processing cost. What is the further processing cost? A and B were further processed in department 2 at a cost of 1,80,000 and 1,50,000 and X was further processed in department 3 at a cost of 1,08,000. So A के लिए 1,80,000, B के लिए 1,50,000 and X के लिए 1,08,000. Got it? Therefore, अभी यहाँ पर हमको क्या है ना कि ठीक है ये हमारी आ गई जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बट हमको ये भी बताना है कि पर केजी वाइज कितना, ये भी हमको निकालना है इस बार. प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट इस बार देखिए आप नंबर 2 में क्या दिया है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली. ठीक है. So here, what I can say, therefore, joint cost per kg, joint cost per kg, ब्रैकेट में 4/1, मतलब आपकी joint cost 6,30,000 for 18,000 ना. So 6,30,000 by 18,000, how much? 35. Then 28,000 divided by 10,000. 2,80,000 is. So it is 28 and 7. Then further processing cost per kg. Further processing cost per kg. So that is nothing but 5/1. 1,80,000 divided by 18,000 is 10. 1,50,000 divided by 40, 3.75, 37.5. Sorry, 1,50,000 divided by 10, it is 15. My mistake. 1,00,000 by 54,000 is 2. Therefore, total cost per unit. Total cost per unit is 45, 43 and 9. Is it? ये हो गया आपका जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल एंड पर यूनिट वाइज. अब आपको दो स्टेटमेंट अलग अलग करने हैं यहाँ पर. डायरेक्टली इसी में हम लोग प्रॉफिट का स्टेटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इस बार ये क्वांटिटी हमारी 18,000 वाली है.
ये प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है और सेल्स क्वांटिटी मेरी अलग अलग है, इसलिए प्रॉफिट का स्टेटमेंट इस बार अलग से बनेगा. इट इज टू बी प्रिपेयर फॉर द क्वांटिटी विच इज सोल्ड. सो बनाइए अगला स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. Statement of profit for sales at split of point. Particulars, total and ABX. अब यहाँ पर सेल्स एंड स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना आपका, मतलब सिर्फ जॉइंट कॉस्ट आएगी, राइट. अब एक काम करें, पर यूनिट वाइज निकाला है ना आपने यहाँ पर, तो यूनिट वाइज करेंगे तो ज्यादा सिंपल जाएगा आपको. कैसे? सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 40 10 ना, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 50 40 10 लेस जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट इज 35 28 7. Therefore, profit per unit 15 12 3. Number of units sold is 17,000, 5,000 and 44,000. Therefore, profit 2,55,000, 60,000 and 1,32,000. इन सबकी टोटल 4,48,000 47 4,47,000. गॉट इट? सिंपल काम हो गया ना. पर यूनिट वाइज कॉस्ट हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है. सो इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस माइनस जॉइंट कॉस्ट विल गेट द इंडिविजुअल प्रॉफिट पर यूनिट. सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, विल गेट द प्रॉफिट. हो गया? Then statement of profit for sales after further processing. Statement of profit for sales after further processing. Particulars, total, ABX, selling price after further processing. आपको डायरेक्टली सेल्स दिया हुआ है टोटल, तो इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं वहां से.
कितना दिया आपको सेल्स ए का 12,24,000 डिवाइडेड बाय 17,000, so it is the selling price is 72, सॉरी ए के लिए 72, बी के लिए 50 एंड एक्स के लिए 80 लेस further processing cost per unit is हमने लिखी नहीं यहाँ पे, हाँ 10, 15, 2, therefore NRV 62, 35, 78 less joint cost है हमारी 35, ये वाली क्या, वेरी गुड, बहुत जल्दी बताएं। जॉइंट कॉस्ट 35, 28, 7, therefore profit per unit 62 minus 35, 27, 35 minus 28 is 7 and 16 minus 7 is 9, बराबर ना। नंबर 6 क्वांटिटी सोल्ड, ए के लिए 17,000, बी के लिए 5,000 एंड सी के लिए 42,000, 44,000, therefore profit 27 into 17,000, 5,000 into 7 is 35,000, 3,96,000, so सब मिलाकर कितना है, 8,90,000, 8,90,000. Now see that what you will recommend. A के लिए split up to 55, further processing 449. So this is further processing. B के लिए 60, 35. So this 60 is recommended. 132 to 396, 3 times. This is further processing is advisable. Got it? ये recommendation में पूछा है ना आपको प्रॉब्लम में. So write down. अगला recommendation. On the basis of above, products to be sold as follows. कितना आंसर? 4,59,000 आता है क्या? $4,59,000, हाँ, 9,15,000.
Total profit 9,15,000. क्लियर? जरा इस प्रॉब्लम को आप 2-3 स्टार करके रखिए, क्योंकि इसमें आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस इज अ डिफरेंट एंड योर सेल्स क्वांटिटी इज अ डिफरेंट. सचिन एक बार पूरा दिखा दे. हो गया सबका? Then come to the next number 9.